Hello everyone. Now I am going to start your 12th chapter which is algebra. तो आज हम इसमें देखेंगे constant and variables, operation of literal numbers, expression and statements, some basic definitions, power of a variable, types of algebraic expressions, simple linear equation with a pair of scales and solving equations. Okay? So let's see, the branch of a mathematics in which we study numbers and mathematical operations is called arithmetic. Here in this chapter we will learn about the another branch of mathematics which is called algebra. Okay, algebra is the branch of mathematics dealing with letters, numbers, symbols, forming mathematical equations, relations. The main feature of the algebra are following. यार कुछ features दिए गए हैं algebra के, क्या होते हैं ये आप देख सकते हैं. The main feature of the algebra is the use of letters which allow us to relay write rules and formula in a general way. By using letters one can talk about any number and not just a particular number. Okay, number B क्या है, letter may stand for unknown quantities. By learning method of determining unknowns we develop powerful rules for solving puzzles and many other problems from daily life. Okay, since letters stand for number, operation can be performed on them as on number that leads to the study of algebraic expression and their properties. तो ये कुछ मेन फीचर्स हैं अलजेब्रा के जो कि आपको आगे समझ में आएंगे. लेट्स स्टार्ट विद द कांस्टेंट एंड द वेरिएबल. On a certain day, the government fixed the selling price of the petrol, which is 79 rupees 71 paise. No petrol pump can sell it at a price that is higher or lower. The price is constant. Okay. Now let's see कि किसी ने पेट्रोल बेचा है 75 लीटर पेट्रोल बेचा है इस प्राइस पे, तो उसका प्राइस निकल के आया 5,978 रुपीज़ 25 पैसे. ठीक है, किसी ने 150 लीटर बेचा तो उसका प्राइस निकल के आया 11,956 रुपीज़ 5 पैसे. अब किसी ने मान लीजिए 500 लीटर पेट्रोल सेल किया है तो उसका कॉस्ट निकल के आया 39,855. ओके, द सेलिंग प्राइस वेरीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द पेट्रोल इज सोल्ड. ओके, हमारी सेलिंग प्राइस जो है जितना भी पेट्रोल सोल्ड किया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब जैसे जैसे पेट्रोल की सेलिंग जितना पेट्रोल सेल हो रहा है वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सेलिंग प्राइस भी वेरी करेगी. ओके, if the variable quantities is substituted by a small letter of the English alphabet, say X, Y, then the selling price of the petrol may be expressed as 79.71 rupees. In algebra, letters such as X called literal or variables. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमको एग्जाम्पल दिया गया है. इन 12a by 13b, the symbols 12 and 13 have fixed numerical values and are called constant. ठीक है, the numerical values of the literal symbols a and b may vary, which is why these are known as variables. ठीक है, हमारे क्योंकि यहाँ पे 12 और 13 फिक्स है बट a एंड b की कोई वैल्यू नहीं दी गई है तो ये वेरीज कर सकते हैं, इसलिए इनको वेरिएबल बोलते हैं. Now see the operations of literal numbers. Okay, as a literal numbers or variables are used to represent numbers, they allow all the rules for four fundamental operations of numbers. Okay, so addition, subtraction, multiplication, division, power of variables. Okay, तो सबसे पहले हमारा एडिशन में देखते हैं. एडिशन में क्या होता है, लेट एक्स एंड वाई बी टू वेरिएबल्स. हमने यहाँ पे माना है कि एक्स एंड वाई टू वेरिएबल्स हैं या टू नंबर्स हैं. एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल्स, तो इनको एडिशन के फॉर्म में क्या कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस वाई. ओके, द सम ऑफ द टू numbers a is equal to 28. तो in algebraic language we write x plus y is equal to 28 जैसे यहाँ पे दिया गया है. सब्सट्रैक्शन में let x and y be two variables and then the difference of these two variables is written as x and y. ऐसे अगला द डिफरेंस ऑफ x एंड y इज 35, तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे. अब मल्टीप्लिकेशन में क्या है,
मल्टीप्लिकेशन में हमें एक इक्वेशन दी गई है, मतलब एक क्वेश्चन दिया गया है। देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है x इंटू वाई इज इक्वल टू 8 इंटू 100। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में, x इंटू वाई इज इक्वल टू 800। डिवीजन में x डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 19/25। पावर्स में लीजिए x की पावर 5 है तो x की पावर 5 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें थी, छोटे छोटे से एक पॉइंट्स हैं ये, जिनको आप आसानी से समझ गए होंगे। नाउ लेट्स सी द एक्सप्रेशंस एंड स्टेटमेंट्स। अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स कनेक्टेड बाय सिंबल्स ऑफ ऑपरेशंस। ओके, ये हमारा एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हो गया, जैसे यहाँ पे एक दिया गया है, ये हमारा एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हो गया, जिसमें क्या बोला गया, कलेक्शंस ऑफ सिंबल्स एंड ऑपरेशंस, जिसमें कई सारे सिंबल्स और ऑपरेशंस दिए गए हैं एक साथ, इसको हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं। नाउ लेट्स सी न्यूमेरिकल स्टेटमेंट। Numerical statement, mathematic phrase or problem made up entirely of numerical characters. It often referred to as a numerical equation. Okay, जैसे यहाँ पे एक अगेन एक न्यूमेरिकल इक्वेशन दी गई है, जिसको आप न्यूमेरिकल स्टेटमेंट बोल सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द algebraic expressions is a collection of variable and constant terms connected by symbols of addition and subtraction. For example, जैसे ये है algebraic statement uses variable as well as number of represent quantities, जैसे ये एक एग्जाम्पल दिया गया है हमें। Now let's see the some basic definitions. यहाँ आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस दी गई हैं। An algebraic terms can either be number, a variable, or a combination of a number and a variable, it represented by plus and minus। यहाँ पे जैसे एक आपको एग्जांपल दिया गया है, 3x plus minus 4y plus 17z has three algebraic terms, 3x, 4y and 17z। The expression 6w minus 15x minus 7y minus 29z has four algebraic terms, इसमें है 6w, 15x, 17y and 29z। Okay, now let's see another question. Terms are of mainly two types, like terms and unlike terms. Okay, like terms and unlike terms क्या होते हैं, two or more terms having the same algebraic factors are called the like terms, and two or more having same different algebraic factors are called unlike terms. Okay, जैसे यहाँ पे एक प्रॉब्लम दी गई है, हम प्रॉब्लम देखते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। अब जैसे हमें एक ये पूरा एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन से होते हैं, तो 2x 8y(x) minus 11xy आर द लाइक टर्म्स। ठीक है, हैविंग द सेम algebraic factors x and y। x square, ये this one x square and 12y(x square) are this also like terms। ठीक है, factors। Now let's see the factors. When numbers and variables are multiplied to form a term, then each quantity multiplied is called a factor of them। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम दी गई है, फाइंड द टर्म्स एंड द फैक्टर ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिस। ये हमें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, जिसमें हमें फैक्टर्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस निकालने हैं। तो हमें सबसे पहले 5x³ में कितने फैक्टर्स हैं, 5x³ में 4 फैक्टर्स हैं, इसमें 3 फैक्टर्स हैं और इसमें भी 3 फैक्टर्स हैं। ओके, now let's see the coefficients. A factor of a term of an algebraic expressions is called the coefficient of the remaining factor of the terms. Here are two types of coefficients, numerical coefficient and literal coefficient. Let us see an example. Let us find the coefficient of each term in the algebraic expression 4ab minus 12ab square plus 25। ठीक है, तो हमें numerical coefficient क्या है इसमें 4
लिटरल कोफिशिएंट क्या है AB, कोफिशिएंट ऑफ A क्या है 4B एंड कोफिशिएंट B क्या है 4A। ये हमारा इसका इसके कोफिशिएंट हो गए 4A के। नाउ 12 AB स्क्वायर में है, -12 है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, AB स्क्वायर है लिटरल कोफिशिएंट, A का कोफिशिएंट है 12B स्क्वायर एंड B का कोफिशिएंट है 12AB। ठीक है, ये हो गए हमारे कोफिशिएंट। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उनको कर सकते हैं। जितने भी टॉपिक्स अभी पीछे पढ़ाए उनसे रिलेटेड कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए गए हैं विद सॉल्यूशंस, आप उनको देखिए, अच्छे से आपको समझ में आएगा। नाउ लेट्स सी द पावर ऑफ वेरिएबल्स। व्हेन अ वेरिएबल इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ सेवरल टाइम्स द प्रोडक्ट इज रिटन इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए, अगर हम x को कई बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लिखते हैं, x की पावर। जैसे x को यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई करने की जगह हम x क्यूब लिख देंगे। अगेन ऐसे ही हम यहाँ पे आगे देखते हैं। अब एक और 2-3 एग्जाम्पल आपको और दिए गए हैं। टाइप्स ऑफ एलिजिब्रिक एक्सप्रेशंस। If the term 4x is considered as an algebraic expression by itself, it would be known as a simple algebraic expression. Okay? अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। A simple algebraic expression or a monomial constants consist of only one terms. Example, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। ओके, 3x 5x स्क्वायर 7pq 7a by 9 5 7x by 5 etc. An algebraic expression consisting of two terms is called a binomial. ठीक है, यहाँ पे जैसे टू टर्म्स दिए गए हैं 2x प्लस वाई 3pq माइनस 4p 18 माइनस z 6x by 25 7y minus 19 3x स्क्वायर प्लस 4y एंड एक्सेट्रा। यहाँ पे जैसे हमें सिर्फ एक एक टर्म दिया गया था तो ये मोनोमियल थे है, और यहाँ पे हमें दो टर्म्स दिए गए हैं इसलिए बाइनोमियल है। यहाँ पे 3 टर्म्स की बात हो रही है, जैसे x प्लस वाई माइनस जेड 14x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई 4ab माइनस 19 प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से हर इसमें 3 टर्म्स यूज हुए हैं इसलिए ये ट्राइनोमियल हो गए। ओके, ये तो बहुत ही इजी सी चीज़ थी, आपको समझने में बहुत आसानी हुई है, बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप। When algebraic expression consists of two or more terms connected by symbols of addition and subtraction, it is known as a compound algebraic expression or a binomial. Okay. अब यहाँ पे हम कुछ एक्सरसाइज दी हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप इनको करिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आएंगे। इसका सोल्यूशन भी बुक के एंड में दिया गया है, तो आपको ये चीज़ क्वेश्चन समझने में और भी आसानी होगी, आप अपने आंसर्स भी बना सकते हैं। नाउ लेट्स सी द सिंपल लीनियर इक्वेशन। एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इक्वेटिंग टू एक्सप्रेशन containing variable. In a question, the variable is bound by certain condition. The equation can only be satisfied by a specific value or variable. An equation which involves a variable with the highest power 1 is called the linear equation. Okay. लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, सिंपली एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है जिसमें कोफिशिएंट या जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसकी पावर सिर्फ 1 होती है। जैसे यहाँ पे दिया गया 2x प्लस 3 इक्वल टू 17, x प्लस वाई इक्वल टू 29। दीज आर दी सिंपल लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब इसे यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। राइट द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स एट एल्जेब्रिक इक्वेशन। 6 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ x गिव्स 18। तो 5 टाइम्स ऑफ x, तो यहाँ पे हमारा 5 हो गया, 5 टाइम्स ऑफ x दिया गया है तो यहाँ 5x हो गया। 6 मोर देन 5x यानी 5x प्लस 6 हो गया, विच गिव्स अस 18। तो हमारा इक्वेशन बनता है 5x प्लस 6 इक्वल टू 18। This is very simple equation. Now let's see the equation with a pair of scales. An equation behave like a pair of balanced scale. Both sides of the equation are balanced in ideal position. In order to maintain balance, we need to remember some rules. See the following example. Okay, यहाँ पे एक आपको कुछ example दिया गया है, यानी कि ये देखते हैं, हमें example दिया गया है।
6 + 3 = 9। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। अगर हम 6 + 3 को ऐड करेंगे तो भी हमें 9 मिलता है, और हमारे राइट हैंड साइड पे भी 9 ही लिखा हुआ है, तो यानी कि बोथ आर द इक्वल। नाउ लेट्स सी द सम रूल्स। हमें पहला रूल बोलता है, इफ वी ऐड द सेम क्वांटिटी ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वल बोथ साइड ऑफ एन इक्वालिटी द इक्वालिटी होल्ड्स ट्रू। ओके, तो यहाँ पे जैसे एक हमें इक्वेशन दी गई है 6 + 3 + 4 = 9 + 4, तो हमें 6 + 3 + 4 को ऐड करते हैं तो हमें 13 मिलता है, और 9 + 4 का अगर ऐड करते हैं तो भी हमें 13 मिलता है। नाउ लेट्स सी द सेकंड रूल, इफ वी सब्ट्रैक्ट द सेम क्वांटिटी फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ द इक्वालिटी एंड द इक्वालिटी होल्ड्स ट्रू। यहाँ पे भी हमारा दोनों साइड LHS एंड RHS हमारा सेम है। नाउ मल्टीप्लिकेशन के रूल में क्या है, मल्टीप्लिकेशन के रूल में है, इफ वी बोथ साइड मल्टीप्लाई if we multiply both side and equality by the same quantity the equality holds the true। अगर हम दोनों बताएं दोनों साइड में अगर हम दोनों साइड में कोई इक्वेशन मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो LHS एंड RHS हमारा बराबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हमारा बराबर है, विच इज़ 18 एंड 18 = 18। ठीक है, नाउ रूल नंबर 4, if we divide both side of an equality by the same quantity the equality holds the truth। जैसे अभी सबसे पहला जो एग्जांपल दिया गया था आप उसको देख सकते हैं। ये हमें एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे 6 + 3 / 3 = 9 / 3, तो विच इज़ LHS एंड RHS हमारा यहाँ पे बराबर है। Now let's see solving equation. To solve an equation mean to find the value of the variable that makes the left hand side of the equation equal to the right hand side of the equation. Okay, so हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, consider the equation 2x + 3 = 21। Now let's put the value of x = 9। तो हमने यहाँ पे 9 की वैल्यू x रखी और इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें LHS एंड RHS दोनों बराबर मिलते हैं। इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय फॉलोइंग मेथड ऑल्सो, ट्राई एंड एरर मेथड एंड सिस्टमेटिक मेथड। तो ट्राई एंड एरर मेथड का क्या रूल होता है, इन द मेथड वी ट्राई डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, हम x की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट भी रख सकते हैं। और सिस्टमेटिक में क्या होता है, सिस्टमेटिक में होता है कि आपको जो वैल्यू दी गई है आपको वही वैल्यू रखनी है यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारे दो मेथड्स हो गए, एक ट्रायल एंड एरर एंड सिस्टमेटिक मेथड। उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं और कुछ ट्रिक्स भी बताई गई हैं आपको, ट्रिक्स और टिप्स भी दिए गए हैं जिसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकते हैं। एक एक्सरसाइज दी गई है आपको, फिर उसके बाद में है कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स नहीं, छोटे छोटे से आपको की पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको आप याद रखेंगे तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसके बाद में आपको एक्सरसाइज दी गई है और कुछ मल्टीपल चॉइसेस के क्वेश्चंस भी हैं, आप इनको करिए, आपको एक चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चैप्टर बहुत इजी है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप क्वेश्चंस घर पे लगाएंगे तो आपको अच्छे से आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए मैं जाती हूँ, बाय बाय।